What is the need of SSP and this 5 day stay? Why they so much emphasize on personality or psyche of a person? अगर कोई सिविल स्ट्रीट में इंटरव्यू देने जा रहा है तो ऑब्वियसली उसको वहाँ पे क्या चाहिए, उसको वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट नॉलेज ज्यादा इम्पोर्टेंट। सर ये तो हमने डूज की बात करी है. व्हाट आर द डोंट्स अबाउट द कॉन्फ्रेंस? पहले से सारा चीज प्री प्लान करके मत जाओ। कुछ चीजें आपको स्पॉन्टेनियस भी करनी पड़ती हैं इमीडिएटली, और वो स्पॉन्टेनियस करने के लिए प्रिपरेशन दिमाग में पहले से आप करके जाओगे तो ज्यादा अच्छा है। Sir, is there any difficulty level in terms of 10+2 entry or graduation entry? तो ग्रेजुएट एंट्री के अंदर में जो कैंडिडेट होते हैं वो थोड़े से। Hi everyone, welcome back to Defense Torja, and I hope everybody is doing fine. My name is Sheetal Yadav, and there is one announcement to be made. Post Defense Academy Indore is conducting a 5-day mock SSP interview camp, which is starting from 7th of June to 11th of June, and you are going to be assessed by ex-board members. Talking about their team, they have ex-interviewing officer Captain Satish Yadav sir, ex-psychologist Colonel Manoj Burman sir, and ex-GTO Commander Somal sir. They have years of experience and I have done videos with them in the past. The charges of the camp is 4,000 rupees and the venue is in Indore itself. There are very limited seats. You can definitely avail the chance. The things are in the description box. You can definitely check out the links in the contact number for further consultation. And it is going to benefit a lot to the repeaters since they don't get to analyze better, since it's very budget friendly for the candidates. I hope that helps. Coming back to video, we have Captain Satish Yadav sir, and he is an ex-interviewing officer having years of experience. In this video, we have primarily focused on how the whole process continues and 5 दिन का process ही क्यों है. Because if we talk about civil services interview, it is hardly of 40 to 45 minutes. Whereas in this military defense exam, the SSP is conducted for 5 days. तो इसके पीछे का reason क्या है? There are very do's and don'ts of the whole process, whether to use tie or not. There's so many things to be discussed. कई बार हम good morning की जगह good afternoon बोल देते हैं. तो how to cover up and what kind of impact is being made on the interviewing officer and the other panel members. I hope that helps. So without any further delay, let's get back to the video. So welcome back again, because in first part we have probably covered all the aspect of conference. Significance to need of the conference to roles and responsibility of president and सर और भी काफी सारे इंटरेस्टिंग सिनेरियोस को हमने डिस्कस किया. बट सेकंड पार्ट के अंदर सर मैंने और बहुत अलग तरह के क्वेश्चंस को रखा है ताकि कैंडिडेट का एक कंप्लीट पर्सपेक्टिव मिल सके कॉन्फ्रेंस के एसोसिएट में. सर वेलकम टू द प्लेटफॉर्म. थैंक यू शीतल. सर आई वाज जस्ट थिंकिंग बिफोर द डिस्कशन कि सर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं या यूपीएससी भी जो एग्जाम्स कंडक्ट कराता है वहां पे सर एक डायरेक्टली इंटरव्यू होता है रिटन क्लियर करने के बाद, एंड उसके अंदर जो 40 मिनट का डिस्कशन है उसके बाद सिलेक्शन डिसाइड हो जाता है फॉर अ गेजेटेड ऑफिसर या क्लास 1 ऑफिसर. व्हाट इज द नीड ऑफ एसएसपी एंड दिस 5 day stay? Why they so much emphasize on personality or psyche of a person? तो सर इतना ज्यादा एनालिसिस क्यों है और ये 5 दिन का प्रोसेस ही क्यों रखा है? Very, very important question. At the same time, difficult question to answer, but I will try to कि हमारा 5 दिन का SSB प्रोसेस क्यों है, और कहीं भी सिविल सर्विसेज ले लीजिए, CAPF ले लीजिए, कहीं पे मोर देन 40 हाफ एन आवर टू 40 मिनट से ज्यादा इंटरव्यू नहीं हो. इसके 2-3 रीजन हैं जो मेरे समझ में आते हैं. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट. हमको अगर ये आंसर देने के पहले एक अपने आप से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि हमारा इंटरव्यू मतलब एसएसबी का इंटरव्यू, डिफेंस का इंटरव्यू और एक सिविल स्ट्रीट में जो इंटरव्यू किया जाता है उसमें फर्क क्या है. ये जानना हमको जरूरी है. अगर वो फर्क हम जानेंगे तो उसके आगे फिर आंसर धीरे धीरे क्लियर होता चला जाएगा. पहला फर्क कि अगर कोई सिविल स्ट्रीट में इंटरव्यू देने जा रहा है तो ऑब्वियसली उसको वहां पे क्या चाहिए, उसको वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए. अगर वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कंप्यूटर इंजीनियर है, या कोई फिजिसिस्ट है, या कोई मैथमेटिशियन है, तो वो जिस इंटरव्यू के लिए जाएगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट नॉलेज में उसकी देखी जाएगी कि उसको वो आता है कि नहीं आता, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आता है कि नहीं, कितनी जानकारी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके है. दैट मीन्स नॉलेज कंपोनेंट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड इज मोर इम्पोर्टेंट. अब हमारे केस के अंदर में ऐसा नहीं. हम लोग यहाँ पे जो करते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं करते. ठीक है, एनडीए का एग्जाम होता है, सीडीएस का एग्जाम होता है, एग्जाम क्लियर किया, उसके बाद में जो कैंडिडेट यहाँ पर डिफेंस में जाता है तो यहाँ पे उसकी पर्सनालिटी चेक करी जाती है. अब व्हेन वी से पर्सनालिटी, तो पर्सनालिटी इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी एब्स्ट्रैक्ट काइंड ऑफ अ थिंग. एक्चुअली इट इज नॉट इजी टू डिफाइन. पर्सनालिटी बहुत इजी नहीं है उसको डिफाइन कर लेना. कोई फिजिक्स का फॉर्मूला नहीं है, कोई केमिस्ट्री का वो नहीं है कि आप ये करेंगे 2+2 करेंगे या मैथ्स करेंगे तो पर्सनालिटी निकल के आ जाएगी. तो पर्सनालिटी को निकालना और उसके बारे में समझना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है. डिफिकल्ट इसलिए कह रहा हूँ कि मैं
जो एक करने वाला है, जो असेस करने वाला है, पर्सनालिटी को रीड करने वाला है किसी कैंडिडेट की, वो खुद एक पर्सनालिटी है। जी सर। आई एम एन इंटरव्यूइंग ऑफिसर, आई एम ए पर्सनालिटी माई सेल्फ। राइट। और कोई कैंडिडेट मेरे सामने, वो भी एक पर्सनालिटी है। तो राइट। पर्सनालिटी के जो मेन चीजें निकल के आती है कि पर्सनालिटी को हमें कैसे करना चाहिए, तो वो एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है बेसिकली। जी। उसके पीछे साइकोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी, साइकोलॉजिकल प्रोसेस को समझना पड़ेगा, और उसी के थ्रू आप कहीं ना कहीं किसी पर्सनालिटी को डिफाइन कर पाओ। जी सर। तो इफ आई गो बैक फर्दर इन हिस्ट्री एक्चुअली, तो 100 साल पहले करीब 1902 के आसपास में, 1902 से 05 के आसपास में साइकोलॉजी एक एक स्पेशल फील्ड निकल के आई थी। उसके पहले सारी कुछ थी, फिजिक्स, मैथ्स, ये सारी केमिस्ट्री, सारी चीजें लोगों ने पढ़ ली थी। स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट यूरोप एंड अमेरिका, वहां पे सब इस तरह के लोग थे जो फिजिक्स केमिस्ट्री में काफी महारत हासिल कर लिया था। और स्पेशली डॉक्टर्स भी थे जो पूरी बॉडी को भी पढ़ चुके थे। बट एक चीज जो लोग नहीं पढ़ पाए थे वो था बेसिकली योर माइंड। माइंड वॉज नॉट एबल टू मीन रेड बाय दैट। उसको कैसे पढ़ा जाए, तो उसके लिए एक नई फील्ड निकल के आई थी यूरोप के अंदर में एंड अमेरिका के अंदर में, वो थी साइकोलॉजी। साइकोलॉजिस्ट जो थे उनको उस टाइम पे बिहेवियरल साइंटिस्ट भी बोला जाता था, उनको बिहेवियरल साइंटिस्ट थे। बिहेवियर पढ़ के वो किसी के साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कर। इसका सबसे पहला फायदा उठाया था वहां के यूरोप के और अमेरिका के जो बड़े बड़े इंडस्ट्री ओनर थे, जो जिनका बड़ा बड़ा व्यवसाय था, फैक्ट्रीज थी। उनको एक प्रॉब्लम आती थी उस टाइम पे कि जो वो वर्कर्स को वो सेलेक्ट करते थे काम करने के लिए अपनी फैक्ट्रीज में या इंडस्ट्रीज में, वो वर्कर्स जैसे हर जगह होता है कहीं ना कहीं शैम करते थे, तो प्रॉपरली काम नहीं करते थे, तो उनका जो प्रोडक्शन था, जो प्रॉफिट था, वो प्रॉफिट इतना नहीं हो पाता। तो कई ऐसे मतलब वर्कर्स होते थे तो वो इस तरह का काम करते थे। वो इंडस्ट्री ओनर्स ने फाइनली बोला कि यार कुछ एक नई फील्ड निकल के आई है जिसको बिहेवियरल साइंटिस्ट कह रहे हैं या साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं, क्यों ना इनकी मदद ली जाए। बिल्कुल। ठीक है। तो उन लोगों ने फिर उनको उससे डिस्कशन किया और बोला कि क्या आप कुछ कर सकते हैं हमारे लिए कि हमारे को एक परफेक्ट एम्प्लॉय मिले, अच्छा एम्प्लॉय मिले, जो हमको हमारा प्रॉफिट बढ़ा सके, हमारा प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सके। तो इन लोगों ने फिर कुछ टेस्ट बनाए, टेस्ट बना के उनको दिए साइकोलॉजिस्ट लोगों ने, और वो टेस्ट से उन लोगों ने उनका सिलेक्शन शुरू किया। और वो सिलेक्शन होने के बाद में जो वर्कर्स नए आए वो फैक्ट्रीज में अच्छा काम करने लगे और उनका प्रॉफिट बढ़ गया, प्रोडक्शन। तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिस्ट लोगों ने बेसिकली क्या किया, वो लोगों को समझा कि किसकी कैसी मेंटल स्टेट होना चाहिए, कैसी मानसिकता होनी चाहिए और किस लोगों को सेलेक्ट करना चाहिए जिससे ये फायदा हो। और उसके बाद में ये हुआ करीब 1913 तक हुआ, 1913 1914। और फिर उसी टाइम पर आपको अगर याद होगा तो वर्ल्ड वॉर वन आ गया। 1914 से लेके 1990 के बीच में वर्ल्ड वॉर वन हुआ। वर्ल्ड वॉर वन के अंदर में भी एक्सेस एंड अलाइड फोर्सेस थे। मैं वर्ल्ड पे नहीं जाऊंगा, बेसिकली मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब दोनों में युद्ध हुआ और खत्म हो गया, तो एवरी कंट्री अपना असेसमेंट करती है कि हमने वॉर में कैसा किया, अच्छा किया, बुरा किया, हमारे जो जनरल्स थे या हमारे एडमिरल्स थे या जो भी थे उन लोगों ने कैसा परफॉर्म किया, हम कितना जीते कितना हारे। तो जो टॉप लेवल वहां के पॉलिटिशियंस थे, ये सारी कंट्रीज लोगों ने किया, ब्रिटेन ने भी किया, फ्रांस ने भी किया, जर्मनी ने भी किया। एक चीज कहीं ना कहीं निकल के आ रही थी कि हम जिसको भी सेलेक्ट कर रहे थे एज ए जनरल या फिर हायर रैंकिंग ऑफिशियल्स आर्मी के या नेवी के, कई उसके अंदर में वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। अब क्वेश्चन ये आता है कि पहले सिलेक्शन कैसे होता था उनकी आर्मी नेवी के अंदर में, तो उसके पहले सिलेक्शन कैसे होता था उसका आंसर भी थोड़ा सा हमें जानना पड़ेगा। उसके पहले कोई ऐसा एक कोई एसएसबी काइंड ऑफ अ थिंग कुछ नहीं था। उस टाइम पे जो सिलेक्शन होता था बेसिकली रॉयल्टी के बच्चे, वही के वही, एक सेनापति का बच्चा, एक जनरल का बच्चा, उसी को रिकमेंड कर दिया जाता था, वही सेलेक्ट होते थे। तो बेसिकली रॉयल ब्लड या ब्लू ब्लड जिसमें होता था उन लोगों को तो उस टाइम पर बना दिया जाता था जनरल या इस तरह से, और रिकमेंडेशन सीनियर ऑफिसर्स के बच्चे ही सेलेक्ट होके आते थे। तो ये तरीका था जनरली। और जवानों के लिए तो फिजिकल प्रोग्रेस चाहिए थी, उनका करेज होना चाहिए था, फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए था। मैं ऑफिसर्स की बात कर रहा हूँ, वो जनरली रेकमेंड, मतलब जो सीनियर ऑफिशियल्स ने या राजा ने या उनके जो अंदर मिनिस्टर्स हैं उन लोगों ने रेकमेंड कर दिया तो वो सेलेक्ट होते थे। अब जब ये उनको मालूम चला कि उन लोगों ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है वर्ल्ड वॉर के अंदर में, तो ऑब्वियसली उनके बात में भी ये क्वेश्चन आया, तो फिर हमें क्या करना चाहिए। व्हाट वी हैव बीन डूइंग, जो अभी हम सेलेक्ट कर रहे थे, जनरल बना रहे थे, एडमिरल पोस्ट दे रहे थे कई लोगों को, तो उन लोगों ने अच्छा काम तो किया नहीं, तो फिर हमें कुछ अपना चेंज करना पड़ेगा। एंड एज आई टोल्ड यू कि 10-15 साल पहले ये साइकोलॉजी का उदय हो चुका था। एक फील्ड आ चुकी थी।
तो उनके भी दिमाग में आया है कि यार वो साइकोलॉजी का है, क्यों ना हम भी फायदा उठाएं। हमारे इंडस्ट्रीज ओनर्स ने इसका फायदा उठाया है एंड प्रॉब्ली हम भी सेलेक्ट कर सकते हैं यूजिंग साइकोलॉजिकल मेथड्स, जो अभी बिहेवियरल साइंटिस्ट कर रहे हैं। राइट। तो फ्रांस के अंदर में, ब्रिटेन के अंदर में, जर्मनी में, ये मेन जो कंट्रीज थी, तो सबके दिमाग में ये बात आ गई। ओके। लेकिन जो इतना इकोनॉमिक कंडीशन खराब हुई थी, तो पहले तो वो ठीक करनी थी। तो उनके जितने भी पॉलिटिशियन थे वो इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करने के लिए अपनी पॉलिसीज में ज्यादा लग गए। उनको लगा कि अभी तो कोई नेक्स्ट वॉर तो शायद अभी नहीं होगा, तो पहला वो ठीक करने में लग गए। एंड ये करते करते 20 ईयर्स निकल गए। 20 ईयर्स निकल गए, 1939 के अंदर में फिर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। यस सर। ठीक है, वो 36 के आसपास से ही मतलब कुछ ना कुछ लड़ाइयां शुरू हो गई थी और फाइनली इट टुक द शेप ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, जो 45 तक चला। अब 39 के अंदर में जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, अच्छा मैं इसके पहले एक चीज बताना भूल गया। पहले वाले वर्ल्ड वॉर वन के अंदर में ब्रिटेन एंड फ्रांस और जो उसके भी उनकी जो अलाइड फोर्सेस थे, ये लोग जीत गए थे। वर्ल्ड वॉर में जर्मनी काफी बुरी तरह से हार गया था एंड उसके ऊपर में कई सैंक्शंस इंपोज किए गए थे जर्मनी के ऊपर में। और ये कहा गया था कि तुम्हारे कारण से हमारे को इकोनॉमिक में इतना लॉस हुआ, तुम्हारे को हर साल हमारे को इतना भरपाई करनी पड़ेगी, मतलब इतने डॉलर्स, लाखों डॉलर्स आपको हर साल हमारे को देना पड़ेगा, तुमने हमारा नुकसान किया है कर। तो ये चीज जर्मनी कर रही थी और मालूम है 2010 तक उन लोगों ने पेमेंट किया है। ओके सर। 100 साल तक पेमेंट किया है, उसका भुगता है उन्होंने इस चीज को। ओके। तो खैर उस पर नहीं जाते। मैं ये बता रहा था, जब जर्मनी को उन्होंने बुरी तरह हरा दिया, जर्मनी पे सैंक्शन लगा दिए, जर्मनी पे ये पैसा देने का लगा दिया कि हर साल इतना पे करना है, तो ऑब्वियसली एज ए जर्मन और जो भी वहाँ के पॉलिटिशियन जो हैं वो कहीं ना कहीं गुस्सा तो हो जाएंगे, उनके मन में एक बदले की भावना तो आ जाएगी। यार हमारा बहुत ज्यादा इंसल्ट कर हो गई है, हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर में हम लोग हार गए हैं। तो ये चीजें जर्मन के दिमाग में आ गई थी। जी सर। एंड कहीं ना कहीं एज ए कलेक्टिव ऑल द जर्मन्स कहीं ना बहुत बदला लेने की सोचने लग गए कि वी हैव टू टेक रिवेंज अगेंस्ट ब्रिटिश, हमें कुछ ना कुछ करना है, तो वो करना है। फिर उन लोगों ने आपस में मतलब जो भी करना शुरू किया। उस टाइम पे एक वर्ल्ड वॉर वन के अंदर में हिटलर वॉज एज ए सिपाही, एज ए सिपाही उसने भाग लिया था। हिटलर वॉज जस्ट ए सिपाही, उसने वर्ल्ड वॉर वन में भाग लिया था और उसने ये सारी चीजें देखी थी। मतलब हमारी इंसल्ट होते हुए, जर्मनी की सबको बुरा हाल होते हुए देखा था उसने, तो कहीं ना कहीं उसके दिल में भी ये एक आग थी। एंड वो वहां की एक जो पार्टी थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो पर्टिकुलर पार्टी का मेंबर बन गया, जर्मन की पार्टी का। और फिर वो उसमें डिफरेंट डिफरेंट जगह जाके भाषण देना शुरू कर दिया। और ये करते करते वो 1929 आ गया था, वो भाषण वाषण दिया करता था एंड फाइनली ही वाज एक्सेप्टेड एज ए लीडर। और 1933 आते आते वो चांसलर बन गया वहां का। और इसके मन में बहुत ज्यादा भावना थी कि मुझे तो किसी भी तरह से इन ब्रिटेन्स को अपने घुटने पे लेके आना है, उनको नाको चने चबाना है, उनको हराना है करके। एंड ही स्टार्टेड एक्चुअली गिविंग स्पीचेस, वो सब पहले से कर ही रहा था। तो पूरी की पूरी मतलब वहाँ की जो जर्मन कॉम वो उसके साथ में हो चली और उन लोगों ने बीच में प्रिपरेशन भी बहुत शुरू कर दी थी वॉर के लिए। उनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया था और उन लोगों ने वॉर की तैयारी अच्छी तरह से कर ली थी। और 1936 आते 39 आते आते उन लोग बहुत स्ट्रांग बन गए थे अगेन, डिस्पाइट ऑफ वॉट एवर मनी दे हैड टू गिव। वो सब करने के बाद में भी उन लोग ने कलेक्टिवली जो काम किया था अपने कंट्री के लिए, उन्होंने जर्मनी को स्ट्रांग बना। ठीक है सर। 39 में आके लड़ाई शुरू हो गई। अब क्या हुआ कि फर्स्ट 2 इयर्स 39, 40, 41 आते आते जर्मनी एज ए फोर्स बहुत स्ट्रांग फोर्स बन गई थी और वो जिस कंट्री में जा रही थी वो कंट्री को एक दिन में सफाया कर रही थी। एक ब्लिट्सक्रिग करके एक वर्ड आता है, जो जिसको हिंदी में बोला जाए तो आंधी तूफान। तो आंधी तूफान की तरह पोलैंड में घुसे और बाई इवनिंग पोलैंड तबाह, कैप्चर कर लिया। ऐसे करके आसपास की सारी कंट्री को कैप्चर कर लिया, फ्रांस को कैप्चर कर लिया। और 41 आते आते फ्रांस भी पूरा खत्म हो गया था, कैप्चर हो गया था। एंड दे स्टार्टेड एक्चुअली बॉम्बिंग लंदन। अब जो यूके है, ब्रिटिश है, ये उसके बीच में देयर इज ए इंग्लिश चैनल, वो है मतलब देयर इज अ सी, वो कनेक्टेड नहीं है, लैंड से कनेक्टेड। तो फ्रांस और उसके बीच में पानी है। तो डायरेक्टली लैंड पे तो नहीं जा पाए, लेकिन वो अपनी फ्लाई करके वहां पे लंदन पे पिन पॉइंट वहां पर बॉम्बिंग कर रहे थे जर्मन्स। और इंग्लैंड की हार हो रही थी, एक तरीके से मैं कहूँ तो इंग्लैंड एंड अलाइड फोर्सेस की हार हो रही थी। अब ये जब प्रॉब्लम हुई और उन लोग सोचने लगे कि यार यही जर्मन्स को अभी हमने वर्ल्ड वॉर में वन में हराया था, हमने डिफीट किया था इन जर्मन्स को, और ये अभी अब इतने अच्छे कैसे हो गए
कि हमारे को हरा रहे हैं, चाहे उनकी आर्मी ले लो, चाहे उनकी एयरफोर्स ले लो, चाहे उनकी नेवी ले लो, दे आर डूइंग बेटर देन अस। जबकि हम एक ही स्टॉक के हैं, यूरोपियन स्टॉक के हैं, एक जैसे दिखने में डील डॉल वाले हैं, ऐसे ही गोरे लोग हैं, वैसे ही लंबे चौड़े हैं, बट अभी जर्मन्स हैव बिकम मच बेटर। यस। व्हाई? दिस क्वेश्चन केम टू द माइंड ऑफ पॉलिटिशियंस वहां के जो थे। तो उन लोगों ने अपने स्पाइस को एक्टिवेट किया, जो जर्मनी में स्पाइंग करते थे उनके लिए स्पाइस को बोला पता करो व्हाट इज हैपनिंग। एंड दीज स्पाइस एक्चुअली दे फाउंड आउट कि जर्मनी में भी जो डिफेंस में जो सिलेक्शन हो रहा है, दे आर गिविंग सम काइंड ऑफ एग्जाम, रिटन एग्जाम दे रहे हैं लोग, या कुछ पर्टिकुलर उनका प्रोसेस है, वो देने के बाद में ये इनका सिलेक्शन हो। तो ब्रिटिशर्स ने फिर अपनी स्पाइस को एक्टिवेट किया कि वो जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है उसकी कहीं से कहीं तुम कॉपी हासिल कर लो। तो उन्होंने साम दाम दंड भेद जो भी लगाया होगा उस टाइम पे, वो कॉपी हासिल कर ली, ब्रिटेन को पहुंचा दी। ब्रिटेन में उसको पढ़ा गया, देखा गया कि ये कुछ साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू ये इन लोग इनके ऑफिसर सेलेक्ट हो रहे हैं। एंड फिर उनके भी साइकोलॉजिस्ट थे ब्रिटेन के, उन लोगों ने इसको स्टडी किया और उनको बोला गया कि फटाफट इसी के बेसिस पे हमारा सिलेक्शन भी शुरू कर। ओके सर। हाँ। ठीक है। तो फिर ब्रिटेन ने एक तरीके से वो जर्मन का जो प्रोसेस था उसको कॉपी कर लिया, थोड़ा सा उसको मतलब अपने हिसाब से चेंज कर लिया और अपना सिलेक्शन शुरू कर दिया। उनके ऑफिसर्स भी वो एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस से गुजरने लगे। इंडिया उस टाइम पे कॉलोनी था 41 के अंदर में, और बट इंडियन के ऑफिसर्स भी सेलेक्ट होते थे ब्रिटिश आर्मी के लिए। तो वो सेम प्रोसेस को हम इंडिया भी लेके आ गए। यस सर। मतलब ब्रिटिशर्स इंडिया भी लेके आ गए। हमारा फर्स्ट एसएसबी खुला था देहरादून के, फर्स्ट एसएसबी विच केम इन देहरादून। ओके सर। शायद प्रॉब्ली जहाँ पे 1 एफएसबी देहरादून है, देहरादून है, वहां कहीं उसके आसपास में फर्स्ट एसएसबी ऑफ इंडिया केम। ओके सर। ओके। एंड अब जो मैं कहानी सुना रहा था बेसिकली इसमें ये एक पॉइंट था इम्पोर्टेंट, कि जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस था, जो सब लोगों ने साइकोलॉजी अपने वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में सोचा था कि हम लोग करेंगे करेंगे, वो जर्मनी ने शुरू कर दिया था, ब्रिटेन नहीं कर पाया था। तो जर्मनी ने साइकोलॉजिकल प्रोसेस से सिलेक्शन शुरू कर दिया था 1927 ऑनवर्ड्स। यस सर। तो उनके वो सिलेक्शन वाले जो ऑफिसर्स थे वो 1939 तक आते आते देवर इन दैट पोजीशन, जो कैप्टन मेजर वो पोजीशन के थे, और जो वहां पे जो मेन लड़ने वाले होते हैं वो लोग थे, और साइकोलॉजिकली वो सेलेक्ट होके आए थे। तो देवर परफॉर्मिंग मच बेटर देन ब्रिटिश ऑफिसर्स, एंड दैट इज द रीजन वो ब्रिटेन टिल 41 तक हारने की कगार पे आ गया था और जर्मनी जीत रहा था। ठीक है। तो अभी वर्ल्ड वॉर 2 में हम और नहीं जाते, लेकिन वी कम बैक टू इंडिया। ओके सर। इंडिया में आते हैं, और इंडिया के अंदर में 45 में वॉर खत्म हो गया। वॉर खत्म होने के बाद में अपना 47 के अंदर में आजाद भी हो गए हम लोग। हमारे नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए। जी सर। एंड कांग्रेस वाज द मेन पार्टी, और ये इन्फ्लुएंस थी किसके विचार से? गांधी जी की। गांधी जी वाज द मेन एक्चुअली फोर्स बिहाइंड कांग्रेस। राइट। तो और कांग्रेस के मेन फोर्स ये थे, और इनका जो एक मेन बिलीफ था कि हमें लड़ाई नहीं करनी है, हम अहिंसा से हम जीते हैं और जीतेंगे, वही करेंगे। मतलब ये बेसिकली उनका जो अहिंसावादी कहते हैं ना गांधी जी को, तो उनकी वो सोच थी। और उसी से सारे लोग प्रभावित थे, चाहे वो सरदार पटेल क्यों ना हो, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्यों ना हो, जवाहरलाल नेहरू क्यों ना हो, उस जमाने के जो भी लीडर्स थे। तो इन्होंने फिर जवाहरलाल नेहरू जो प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने तीनों चीफ को बुलाया अपने ऑफिस में, और तीनों चीफ, आई वांट टू डिसबैंड आर्मी नेवी एंड एयर्स, जरूरत नहीं है हमारे को, हम किसी के दुश्मन नहीं हैं, हमारा कोई दुश्मन नहीं है, और तो हम क्यों इतना पैसा लगाएं आर्मी नेवी को और एयरफोर्स को सस्टेन करने के लिए। तो प्रिपेयर ए प्लान अकॉर्डिंगली एंड लेट्स डिसबैंड द डिफेंस फोर्स। इंडिया आजाद तो हो गया था, लेकिन आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ अभी भी ब्रिटिशर्स थे। तरीके से कह लिया जाए कि वो डिपुटेशन पे थे इंडिया में, लेकिन हमारी आर्मी नेवी एयरफोर्स को संभाल रहे थे। ओके। तो तीनों के तीनों ब्रिटिशर्स आपस में डिस्कस किया हम लोगों ने, यार क्या बोल रहे हैं ये, आई मीन व्हाट इज ही टॉकिंग, सच ए बिग कंट्री, इट्स रिक्वायर्स लॉट ऑफ डिफेंस एंड ऑल दैट, और ये बोलता है कि डिसबैंड कर दो। तो दे वर नॉट हैप्पी, बट देन प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है तो ठीक है, दे केम बैक। एंड बिलीव मी, मैंने ये सेंटेंस में बहुत कम बोलता हूँ कि पाकिस्तान ने हमारे को कहीं ना कहीं सपोर्ट करी टू रिटेन अवर आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स। ओके सर। अब यू मे आस्क क्वेश्चन, सर कैसे, आप कैसे बोल रहे हो पाकिस्तान ने सपोर्ट कर दी? तो पाकिस्तान ने ऐसे सपोर्ट करी कि इफ यू रिकॉल, अगर आप थोड़ा हिस्ट्री के जानकार हैं, तो 22 अक्टूबर
19 आई थिंक 47 इटसेल्फ पाकिस्तान ने हमारा कश्मीर को हथियाने के लिए अटैक कर दिया। Yes, sir. Absolutely. दे थॉट कि एक बड़ा अच्छा मौका है, हम्म, कश्मीर में ज्यादा मुस्लिम्स हैं, हम वहां पे अटैक करके उसको अपने पास ले लेते हाँ, हैं। एंड उसके बाद में फिर वो नेगोशिएशन डिस्कशन राजा हरी सिंह के साथ में हुए, थोड़ा टाइम लगा, और फाइनली उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन कर दिया। हम्म, अब जब ये अटैक हो गया तो ऑब्वियसली ये तीनों चीफ को बुलाया गया, भाई डिफेंड करो। तो हम्म, तीनों चीफ ने बोला था दैट इज व्हाई वी रिक्वायर आर्मी नेवी एयरफोर्स, की ऐसे अटैक कहीं से भी हो सकते हैं। हाँ, एंड देन नेहरू एक्सीडेड कि हाँ भाई हम कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज उनका मानना था कि पुलिस फोर्स ही काफी है हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। ओके सर। दैट इज वॉज द बिलीफ। वो बिलीफ फिर वो खत्म हो गई उनकी। एंड देन एक अपनी कश्मीर की लड़ाई एक अलग कहानी है, हम्म, चलो उसको भी हम आगे नहीं बढ़ते। अब वापस आते हैं अपने सिलेक्शन के ऊपर। और जी फिर सर। भी नेहरू ने बोला कि ठीक है चलो ओके व्हाट एवर इज देयर, आप कंटिन्यू करेंगे आर्मी नेवी एयरफोर्स, बट जो सिलेक्शन सिस्टम आप जो फॉलो कर रहे हैं वो तो ब्रिटिशर्स का है, वहां से लेके आए हैं, उनका है। हम्म, आई मीन आई थिंक हमारे सोशल कल्चरल और इसके लिए फिट बैठता है कि नहीं बैठता, आप प्लीज स्टडी करिए इसको, हम्म, पता करिए क्या करा जाए। तो फिर एक कमिटी बनाई, ओके। एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने डिसाइड किया कि एक कमेटी बनेगी जिसमें सीनियर आर्मी ऑफिसर्स, नेवी ऑफिसर्स एंड एयरफोर्स ऑफिसर रहेंगे और साइकोलॉजिस्ट होंगे। तो हमारे इंडिया के अंदर में भी साइकोलॉजिस्ट हम्म, थे जो उस टाइम पे स्टडी करते थे। ओके सर। तो एक साइकोलॉजिस्ट थे उस टाइम पे, सीनियर साइकोलॉजिस्ट, जिनका नाम घोष था। हम्म, तो अंडर हिम एक घोष कमेटी बनाई गई 1947 में, हम्म, और बोला गया कि भाई डिफेंस का सिलेक्शन के अंदर में जो प्रोसेस है ऑफिसर्स का, ये रिटेन करना चाहिए या चेंज करना चाहिए, आप लोग स्टडी करें। हम्म, तो ये सीनियर आर्मी नेवी एयरफोर्स एंड घोष और जो भी साइकोलॉजिस्ट और लिए होंगे उस टाइम पे, हम्म, इन लोगों ने स्टडी करा। 2 साल लगा पूरी स्टडी करने के अंदर में। हम्म, और 1949 में जाके इन्होंने अपनी रिपोर्ट को टेबल किया पार्लियामेंट के अंदर ओके। कि ये हमारी फाइंडिंग्स हैं। हम्म, तो उनकी जो मेन फाइंडिंग्स थी, जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स थी, वो उनकी निकल के आई थी कि सर जो सिलेक्शन सिस्टम जो है हम्म, ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पे बेस्ड है, हम्म, बहुत सॉलिड फाउंडेशन है इसकी। चाहे ओके। वो इंडिया में, मतलब इंडिया के लोगों को सेलेक्ट करना हो, चाहे ब्रिटेन के करना हो, तो प्रिंसिपल वही है। ओनली थिंग हम इसको इंडियनाइज कर देंगे, हम्म, थोड़ा सा इंडियनाइज कर देंगे, क्योंकि वहां पर जो भी आप जैसे बना रहे हैं जीपी बना रहे हैं, तो जीपी के अंदर में आपको आपने देखा होगा कि वहां पर कहीं ना कहीं आप यहाँ पर रामपुर सीतापुर ट्रेन यहाँ यस जा सर। रही है, मंदिर ये जा रहा है, कुछ इस तरह की कहानी बनी होती है। बिल्कुल। वहां पे जब वो ये जीपी होता था तो उसके अंदर में तो रामपुर सीतापुर तो नहीं लिखा होगा, यस। वहां के विलेज का नाम लिखा होगा, वहां की रिवर्स का नाम लिखा होगा, या वहां के जो भी। तो बोला ये सब चीजें हमको इंडियनाइज कर देनी है। पहला काम ये, पहला तो इसको हम रिटेन करेंगे, इंडियनाइज कर देंगे। फिर तीसरा ये चीज उनमें कहा गया कि हमको एक ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी जो इस सिलेक्शन को लेके हमेशा उसके अंदर में मॉडिफिकेशन के लिए पढ़ाई करते रहे या रिसर्च करते रहे और चेंजेस लेते आए। ओके। ठीक है, क्योंकि इंडिया अभी आजाद हो गया है, सोशली कल्चरली इकोनॉमिकली वो आगे बढ़ेगा, तो हमारी जनता भी आगे बढ़ेगी, हमारे लोग थोड़े थोड़े रिच होने जाएंगे, हमारा सोशल कल्चरल में चेंजेस आ जाएंगे। एब्सोल्युटली। ये सब चेंजेस जब आएंगे तो फिर हमारा जो तरीका भी हमको बदलना चाहिए। तो एक ऑर्गेनाइजेशन ये काम करेगा जो वो तरीकों को देखते हुए अपने सिलेक्शन सिस्टम जो डिफेंस के लिए है उसके अंदर में भी चेंजेस लेके आए। तो वो चेंजेस लाने के लिए उन्हें एक पहला जो बनाया जिसको बोलते हैं डीपीआर। इन 49 में एक डीपीआर बना जिसका फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। ओके सर। वो एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, लेकिन डीपीआर पार्ट ऑफ आर्मी हेडक्वार्टर, और उस टाइम पे ये वाला डायरेक्टरेट जो आर्मी हेडक्वार्टर का हिस्सा था, दिस वाज सिचुएटेड इन मेरठ। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि आर्मी हेडक्वार्टर का कुछ हिस्सा मेरठ में भी था, दिल्ली में नहीं। सब लोग बोलते हैं दिल्ली दिल्ली, लेकिन आर्मी हेडक्वार्टर वाज इन मेरठ ऑल्सो। ओके सर। फिर धीरे धीरे डीपीआर का इवोल्यूशन हुआ, डीपीआर इस काम में लग गया सिलेक्शन के लिए, और उसने टेस्ट बनाने शुरू किए जो हम साइकोलॉजिकल टेस्ट देते हैं, टैट वैट एसआरटी। मैंने आपको साइकेट्रिस्ट की भी कहानी सुनाई थी, जब तक वो भी था फिर वो निकाला गया। तो इस तरह के चेंजेस आते गए आज धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। और फिर ये डीपीआर से धीरे धीरे 1982 में आके, बीच में बहुत सारी चीजें हुई, मैं उस पर नहीं जाता। ओके सर। 1982 में आते आते एक अलग इंस्टीट्यूट बन गया, डीआईपीआर, डिफेंस राइट। इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, जिसका काम अब मैंडेट वही है कि उसको अपने सिलेक्शन सिस्टम को आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए जो भी चेंजेस लेके आने हैं वो लेके आएगा। वो उन लोग वहां से बना के पास करके फिर हम आर्मी नेवी एयरफोर्स को देते हैं, और जिसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं।
जी सर। तो तब से ये चल रहा है। बीच में फिर वो 15 ओएल क्यूज की बात आई। पहले ओएल क्यूज बहुत ज्यादा थे, 29 ओएल क्यूज थे एनडीए के लिए, 15 थे आईएमए के लिए। फर्दर डिस्कशन हुआ, फाइनली इट केम टू 15 ओएल क्यूज फॉर एनी काइंड ऑफ एंट्री इज ओके। ओके सर। तो वो सब बन गया। तो वो साइकोलॉजिकल प्रोसेस वही हम फॉलो कर रहे हैं अभी भी। और क्वेश्चन नाउ ये आता है कि 5 days ही हम क्यों फॉलो करते हैं। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन इज, आई वाज टेलिंग यू कि वन पर्सनालिटी इज सेलेक्टिंग अनदर पर्सनालिटी। वो तो उसके अंदर में देयर आर चांसेस कि यू माइट अर्न, दैट मींस यू मे क्रिएट सम मिस्टेक। ओके। ठीक है। आप एक पर्सनालिटी दूसरे पर्सनालिटी, और पर्सनालिटी बनती कैसी है उसके लिए भी हमको थोड़ा सा तो उसमें डील करना पड़ेगा। पर्सनालिटी बनने के लिए अंदर में जनरली द मोमेंट ए चाइल्ड इज बॉर्न, विच इज माँ के गर्भ से बाहर निकल के जब आता है और वो देखना सुनना समझना शुरू करता है, उस टाइम पे उसको समझ में नहीं आता, लेकिन कुछ ना कुछ देखता है, कुछ ना कुछ सुनता है। ऑल दिस प्रोसेस वॉट एवर इज हैपनिंग अराउंड हिम और हर, वो उसके माइंड में लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होने शुरू हो जाता जी सर। है। फिर धीरे धीरे वो बढ़ता है, 1 साल चलना सीखता है, बोलना सीखता है, तो घर का जो वातावरण होता है, जो एटमॉस्फेयर एट द हाउस इज द फर्स्ट इंप्रेशन जो उसके बच्चे पे पड़ता है। राइट। तो घर का अगर एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, मतलब उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी जो भी रहते हैं, चाचा चाची, पहले जॉइंट फैमिली का एक कंसेप्ट था, वो उसके अंदर में बहुत अच्छा वातावरण रहा है, तो सब बच्चे की जो परवरिश होती है एक बहुत ही ऑलराउंडेड पर्सनालिटी के रूप में वो निकलता है। सारी घर के वातावरण ऐसा नहीं भी होता। हमारे देश में गरीबी भी बहुत है, राइट। माँ बाप में लड़ाइयाँ भी होती रहती हैं, कभी बहुत कुछ चीजें होती हैं। तो जो भी हो रहा है उसका इफेक्ट उसको बच्चे को पड़ेगा, 100%, कोई डाउट नहीं है इसमें। जो भी वो सीख रहा है, समझ रहा है, टिल 3 years, 4 years, 5 years, जब वो घर में ही है और जो भी सीख रहा है, तो फर्स्ट इंप्रेशन उसके दिमाग में वो पड़ चुका है। ठीक है। फिर उसके बाद में वो बाय द एज ऑफ, आजकल कहते हैं कि 6 साल के अंदर में हम स्कूल में जाना शुरू करते हैं। राइट। ठीक है, चलो वही मानते हैं, हम स्कूल में जाना शुरू किया, वहां पे आपके दोस्त बने, वहां पे आप क्या टीचर्स मिले आपको, तो कैसे टीचर्स मिले, कैसे स्कूल में आपने एडमिशन कराया, कैसे दोस्त बने, अच्छे बने बुरे बने, किस तरह के थे, वो सेकंड आपका पर्सनालिटी पे असर, जो आपकी ग्रोइंग अप स्टेज होती है 6 साल से लेके, और बाय द टाइम यू कम टू 16, 17, जहां तक ये सारे इनपुट आपके दिमाग में जा चुके होते हैं, और यू बिकम वन पर्सनालिटी। यस सर। आप एक पर्सनालिटी हासिल कर लेते हो, जो भी होती है, अच्छी बुरी जो भी है। राइट। उसके आगे फिर जो प्रोसेस, तो आगे फिर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक एक नॉर्मल जो बोलते हैं ना कि ढांचा बिल्कुल तैयार हो चुका होता है, यू आर एक पर्सनालिटी बन चुके हैं। एब्सोल्युटली। तो अब इस पर्सनालिटी को हम यहाँ पे जानने की कोशिश कर रहे हैं। और पर्सनालिटी को एक अगर साइकोलॉजिकली रूप में देखा जाए तो इट इज लाइक एन आइसबर्ग। पर्सनालिटी को कई बुक के अंदर में, जो पर्सनालिटी रिलेटेड है, साइकोलॉजिकल रिलेटेड बुक्स है, इसके अंदर में इसको अकीन बोला गया है कि इट इज एन आइसबर्ग। तो आइसबर्ग का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि द ओनली 30% ऑफ आइसबर्ग इज अबव वाटर, 70% इज बिलो वाटर। राइट सर। तो एब्सोल्युटली। व्हाट आई मीन टू से कि जो हम आज दिख रहे हैं, आप जो मेरे को दिख रहे हो, जो मैं आपको दिख रहा हूँ, या कोई भी कैंडिडेट है, हम लोग अपने आप को सिर्फ 30 to 40% ही बाहर दिखा रहे हैं। 60% हम लोग अंदर हैं। अंदर कहाँ पर है? हमारे केस के अंदर में पानी नहीं है, हमारे केस के अंदर में माइंड, व्हाट वी आर, जो दिमाग के अंदर में जो स्टोर हो चुका है ना, वो पर्सनल। यस सर। अब ये जो 5 डे का हम प्रोसेस करते हैं, तो इसके अंदर में अपने डिफरेंट डिफरेंट मेथड से हम वो 15 ओवल क्यूज निकालने की कोशिश करते हैं। और 15 ओवल क्यूज को अगर दूसरे शब्दों में बोला जाए तो दे आर द कैरेक्टर्स ऑफ अ पर्सन। राइट। जो भी आपने वैल्यूज सीखी हैं, चाहे वो एथिकल है या खराब वैल्यूज हैं, जो भी आपके पर्सनालिटी में आ चुकी हैं, वो आपके माइंड में स्टोर हैं, उसको निकालना हमारा काम है। तो इसलिए एज ए इंटरव्यूइंग ऑफिसर मैं अगर क्वेश्चन करता हूँ कि तुम्हारा पेरेंट्स क्या थे, क्या काम करते थे, बचपन में तुम क्या करते थे, किसके साथ खेलते थे, तुम्हारा दोस्त कौन है, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन वी आस्क ना। हु आर योर फ्रेंड्स, व्हाई ही और शी इज योर बेस्ट फ्रेंड, व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड्स यू डोंट लाइक टू मेक फ्रेंड्स। तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपको अपनी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपने सोच रखा है, वहां से निकाल के आप, मेमोरी से निकाल के आप आंसर करेंगे। तो दैट मीन्स आपके पर्सनालिटी खुलना शुरू होती है हम लोग के सामने। फिर भी हम ये मानते हैं कि डिस्पाइट ऑफ वी आर फॉलोइंग साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, साइकोलॉजिकल टेस्ट देख के साइकोलॉजिस्ट चेक कर रहा है, जीटीओ भी साइकोलॉजिकल वे से उसको टेस्ट कर रहा है जीटीओ के अंदर में, कहीं ना कहीं हम भी गलती कर सकते हैं। एब्सोल्युटली सर। क्योंकि हम भी एक अपब्रिंगिंग के ही बने हुए हैं। हमारे जो आप दूसरे के लिए बोल रहे हैं वही चीज हमारे लिए भी लागू है। यस सर।
वी आर ऑल्सो, हमारा भी एक प्रोसेस रहा है, हमारा भी एक अपब्रिंगिंग रही है, हमको भी एक नर्चर मिला है, हमको भी एक नेचर मिला है, उससे हम भी एक पर्सनालिटी बने। और हम्म नाउ वी हैव बीन टास्क्ड टू असेस अ पर्सनालिटी। हम्म, तो हम भी कहीं ना कहीं अपनी जो अपब्रिंगिंग से कहीं ना कहीं बायस्ड हो सकते हैं। बिल्कुल। मेरी अपब्रिंगिंग में अगर एग्जांपल दूं, मतलब कोई भी, मैं मेरी या किसी भी असेसर की बात मैं करूं, कोई असेसर है जो बहुत ज्यादा ऑनेस्ट रहा है अपनी जिंदगी में, हम्म बहुत ऑनेस्ट रहा है, हम्म उसने कोई गलत काम कभी नहीं किया, झूठ नहीं बोलता था और बहुत ही ईमानदारी से काम किया उसने। अब वो बन गया असेसर। हम्म तो उसके लिए ऑनेस्टी, जो हम लोग क्वालिटीज अगर देखें तो एसओआर के अंदर में ये आती है, इंटीग्रिटी, वैल्यूज, या ऑनेस्टी, ये एसओआर के अंदर में आती है। हम्म ठीक है, कोई बोलेगा कि ऑनेस्टी तो कहीं कहीं कोई क्वालिटी लिखी नहीं, बट ऑनेस्टी इसकी एसओआर की डेफिनेशन जब आप पूरी पढ़ेंगे तो उसके हम्म, अंदर में इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी आती है। ठीक। तो मैं ये कह रहा था कि अगर सपोज एक असेसर, इंटरव्यूइंग ऑफिसर एक बहुत ऑनेस्ट रहा है, उसके हम्म सामने कैंडिडेट आ गया और हम्म कैंडिडेट ने कुछ ऐसे घुमाने की कोशिश करी या छुपाने की कोशिश करी या लाइव बोलने की कोशिश करी, डिसऑनेस्ट लग रहा है वो, हाँ तो हाँ, ऑनेस्ट असेसर हम्म, कैन बी वेरी स्ट्रिक्ट टू हिम ऑल्सो। ओके, एब्सोल्युटली सर। ही कैन बी वेरी स्ट्रिक्ट, अरे यार ये तो झूठ बोलने वाला है, आई डोंट लाइक। तो क्या है, उसको मार्क्स कम देने थे लेकिन उसने और ज्यादा कम दे दिए। ठीक है सर। हम्म, हाँ हाँ, समझ में आया आपको? हम्म तो आप ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाओगे हम्म क्योंकि आपकी अपनी एक पर्सनालिटी। हालांकि ये चीजें हमको जब सिखाई जाती है, हम डीआईपीआर में कोर्स करते हैं, जब मैं भी करवाता था, मैंने कहा देखो आपके पर्सनल व्यूज, बायसेस सिलेक्शन में नहीं आने चाहिए। ओके। ठीक है, तो वी आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि हमारा पर्सनल व्यूज और बायसेस भी इसमें सिलेक्शन में कहीं ना कहीं अफेक्ट डाल सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं करना है, हमें बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से उसका असेसमेंट करना है, डिवाइड ऑफ एनी बायसेस। बायसेस नहीं होने चाहिए हमारे, बट राइट। ये जानने के बाद में भी कहीं ना कहीं आ सकते हैं। ठीक है, पॉसिबल। हम लोग कोई भगवान तो नहीं हो गए, हम्म असेसर बन गए मतलब भगवान तो नहीं हो गए, हम भी इंसान ही है, कहीं ना कहीं गलती शायद हम कर सकते हैं। तो पहला रीजन ये, हम्म देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ अरिंग इन अवर असेसमेंट। तो हम एक की जगह तीन ऑफिसर्स हैं, एक अर कर जाएगा, हम्म, दूसरा भी अर कर जाएगा, लेकिन तीसरा कहीं ना कहीं पकड़। बिल्कुल सर। ठीक है, हम्म, तो फिर जब हम तीनों का असेसमेंट को जब कॉन्फ्रेंस में डिस्कस करते हैं, हाँ तो कहीं ना कहीं जो हमारे जो एरर्स एंड बायसेस आ गए हैं वो रिड्यूस हो जाते हाँ हाँ, हैं डिस्कशन के अंदर। हम्म वी रिड्यूस दोस बायसेस एंड एरर्स। हम्म तो फर्स्ट रीजन ये है कि हम ऐसा कैंडिडेट को सेलेक्ट करना चाहते हैं कि जो वाकई में हमारे देश के लिए सेलेक्ट हो, ऑफिसर बने। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हम क्यों चाहते हैं कि वो इतना अपराइट ऑफिसर हो डिफेंस के अंदर, हम्म ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। व्हाई यू वांट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन? क्या ये चीजें बाकी उसमें नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बट यहाँ पे ज्यादा क्यों होनी चाहिए? व्हाई यू से कि 15 ओवरक्यूज इसके अंदर भी होनी चाहिए? सेम 15 ओवरक्यूज इज रिक्वायर्ड फॉर इंजीनियर ऑल्सो, फॉर अ हम्म कंप्यूटर साइंटिस्ट ऑल्सो। हम्म किसी की फील्ड में जाए वो चीज वहां पे भी जरूरत है, बट यहाँ पे क्यों ज्यादा? तो उसका आंसर भी ये है कि आप किसके लिए जा रहे हो? यू आर गोइंग फॉर अ सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। डिफेंस सिक्योरिटी ऑफ द नेशन से बढ़ के कोई काम नहीं। बिल्कुल सर। अगर अपने देश की सिक्योरिटी के लिए जा रहे हो और आप में एसओआर में आपकी इंटीग्रिटी नहीं है, आप ऑनेस्ट नहीं है, तो देयर आर चांसेस कि आप कहीं ना कहीं दिख जाएंगे। हम्म यू विल बी हनी ट्रैप्ड, यू विल बी ट्रैप्ड बाय वेरियस मीन्स। सारे अदर कंट्रीज के स्पाइस घूमते रहते हैं, दे आर ऑन द लुकआउट ऑफ सच पर्सनालिटी इन डिफेंस फोर्सेस जो अपने सीक्रेट्स बेचते, हम्म जिसकी इंटीग्रिटी वीक है, हम्म जो डिसऑनेस्ट है, जो बिक सकता है। ये चीजें चलती रहती हैं, हम्म हम भी करते हैं, दूसरे कंट्री में बेचते रहते हैं। तो हम्म अगर हमने कोई डिसऑनेस्ट को सेलेक्ट कर लिया तो कल वो आपकी सिक्योरिटी को बेच देगा हम्म और आपका नेशन को बेच देगा, अपनी माँ को भी बेच देगा बेसिकली। तो वी डोंट वांट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन टू कम इनटू द डिफेंस फोर्सेस जिसकी इंटीग्रिटी वीक हो या नहीं हो बेसिकली। हम्म, इसमें वीक होने की बात ही नहीं, इंटीग्रिटी होती है या नहीं होती। सही बात है सर। तो वैल्यूज जिसके स्ट्रांग हो हम उसको सेलेक्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल तो तीन लोग मिलके कर रहे हैं तो हमारे जो एरर्स बायसेस कम हो जाएंगे। हम बिल्कुल। उस कैंडिडेट को सेलेक्ट कर पाएंगे जिसके वैल्यूज अच्छे हैं, जो सिक्योरिटी ऑफ द नेशन के अंदर में बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करेगा। हम्म, इसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इतना सिस्टम हमारा फुल प्रूफ हो गया, ऐसा नहीं हुआ। उसके बिल्कुल। बावजूद भी कोई ना कोई आ जाता है, इसलिए आपको कहीं कहीं सुनने को मिलता है। बट लेकिन इन कंपैरिजन टू अदर्स यहाँ हम्म, पे बहुत कम मिलेंगे डिफेंस ऑफिसर जो आपको इस तरह की चीजें करते हैं। बिल्कुल सर। तो इसीलिए डिफेंस ऑफिसर के अंदर में तीन लोगों की जरूरत पड़ती है। हम्म अदरवाइज क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि भाई सेम ओएलक्यूज हम्म इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी कर रहा है, जीटीओ भी कर रहा है, साइकोलॉजिस्ट, तीन तीन टेक्नोलॉजी। ओएलक्यू,
तीन क्यों चाहिए आपको? Why should government pay 3 officers finding the same OLQs? राइट सर। Why should government pay? बट गवर्नमेंट इसलिए पे करता है कि आपको जरूरत है ऐसे कैंडिडेट की, इनकी हाई इंटीग्रिटी, जो बिके नहीं, जो बिल्कुल अपनी देश की सुरक्षा से खिलवाड़ ना करे, है कि नहीं? यस तो सर। इसलिए हमारा ये एक दिन में नहीं हो पाता, हमको इसको 5 दिन के अंदर में करना पड़ता है। इंटरव्यू अलग करता है, जीटीओ अलग करता है, साइकोलॉजिस्ट अलग करता है, और हम अपने अपने कंपार्टमेंट में करते हैं, एक दूसरे से प्रभावित नहीं होते, इन्फ्लुएंस नहीं होते, बात ही नहीं करते हैं। वी मीट फर्स्ट टाइम इन द कॉन्फ्रेंस, राइट। पहली बार तो कॉन्फ्रेंस में मिलते हैं हम लोग, पूरा असेसमेंट करने के बाद में, तो मतलब हम असेसमेंट कर चुके होते हैं, हम उसमें कोई चेंज करते भी नहीं। फिर जो चेंज जब आता है, जब वो कहीं इस तरह की सिचुएशन आती है कि क्लियर बाय 1, क्लियर बाय 2, क्लियर बाय 3, व्हाट काइंड ऑफ कैंडिडेट ही और शी इज, और फिर डिस्कशन करके हम लोग उसको क्लियर करते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हम जो भी सिलेक्शन करें वो एक उसका बहुत सही मतलब पर्सनालिटी दिखा रहा हो, एंड दैट इज द रीजन, बिलीव यू मी, मैं डीआईपीआर में 7 साल रहा, कई बार केसेस आते थे हमारे पास में कि फला फला ऑफिसर्स ने कुछ ऐसा कुछ कर दिया, इसका रिकॉर्ड देखा जाए, एसएसबी का रिकॉर्ड देखा जाए। तो हमको आती थी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट आती थी, प्लीज हमारे को उसका रिपोर्ट बना के भेजिए, इसका रिकॉर्ड क्या था एसएसबी के टाइम पर। तो उसका जब एसएसबी का रिकॉर्ड खोल के हम पढ़ के जो रिपोर्ट बना के देते थे, तो कहीं ना कहीं जिसके मामले के अंदर में वो ऑफिसर के बारे में इंक्वायरी चल रही है या फंस गया है, वो कहीं ना कहीं उसका इंडिकेशन उसमें लिखा होता। ओह माय गॉड, ओके सर, आई डिडंट नो कहीं अबाउट। ना कहीं इंडिकेशन उसमें लिखा होता था कि ही हैज ए हैबिट ऑफ, और ही हैज अ टेंडेंसी ऑफ सो एंड सो, कुछ इस तरह से कहीं एक लाइन कहीं मिलती थी किसी की असेसमेंट में, और जो निकल के आज आई है 30 साल के बाद में या 35 साल के बाद। रियली सरप्राइजिंग तो सर। बिलीव यू मी, जो हम लोग ये रिपोर्ट लिख देते हैं, जो डोजियर के अंदर में आई हो जीटीओ साइकोलॉजिस्ट, और जो डीआईपीआर के अंदर में रखी जाती है ऑल सेलेक्टेड ऑफिसर्स की, नॉट सेलेक्टेड के नहीं, ऑल सेलेक्टेड ऑफिसर्स की वहां पे रखी हुई है 1947 से, सारे ऑफिसर्स की आज भी रखी हुई है, अभी तक जितने भी ऑफिसर्स हुए हैं सेलेक्टेड जो हुए हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स में, डीआईपीआर में उसकी कॉपी रहती है, और पर्टिकुलर हेडक्वार्टर में भी होती है, आर्मी के ऑफिसर्स की आर्मी में भी होती है, नेवी की नेवी में होती है, एयरफोर्स की एयरफोर्स, तो 2 जगह रिपोर्ट होती है, बट डीआईपीआर में तीनों की होती। तो वही निकल के आती है जो उस टाइम पे प्रेडिक्ट किया था 30-35 साल पहले कि ये इसमें ये टेंडेंसी है करने की, और वो निकल के आती है। तो एक तरीके से हमारा जो सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम है, ये यस। बहुत ही फेयर सिस्टम है, और बहुत ही फूल प्रूफ काइंड ऑफ सिस्टम। कोशिश हम करते हैं कि ऐसे लोगों को सेलेक्ट करें, तो इसीलिए हमारा जो प्रोसेस है ये 5 दिन का है। यस सर। इसके अंदर में हम गलतियां नहीं चाहते। आई होप मैंने शायद आंसर किया आपका। एब्सोल्युटली सर, बिकॉज आई वाज अबाउट टू से मैंने सर 60-70 वीडियोस करे हैं, बहुत सारे एसएसएस के साथ भी करे हैं, बट आई एम ग्लैड आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू यू, बिकॉज सर फॉर अ टाइम बीइंग आई फॉरगॉट दैट वी हैव अदर क्वेश्चंस या वी हैव सेशन टू डिस्कस इट। आई वाज सो मच इंटरेस्टेड इन नोइंग ऑल द फैक्ट्स, क्योंकि कैंडिडेट सर ये तो चाहता है कि हर कैंडिडेट ये चाहता है कि एसएसबी क्लियर हो जाए, बट यू नो सर व्हाट इज द रिक्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कहाँ, you know, what is the need of the organization? So, sir, I'm really thankful to you that you have discussed this in so much detail, and I want all the aspirants to share this video particularly. I rarely say so, but I think this is one of those kind of videos where we have discussed it very much detail, sir. Thank you so much, sir. Moving ahead, sir, there are other queries also regarding to conference, since it is a conference associated video. Sir, जब हम preparation की बात करते हैं, तो I've seen candidates discussing कि screening test के regarding में psych, interview, GTO, but I have seen candidates taking for granted when it comes to conference. And I believe, sir, as you said in the last part, that conference का भी अपना एक weightage है, यहाँ का भी आपका performance काफी कुछ चीजें influence कर सकता है। तो what are the do's and don'ts of conference? Because as I said, it is being highly neglected. हाँ, ठीक है, आपका पॉइंट क्वेश्चन बहुत सही है, और मैं कोशिश करता हूँ कि छोटे से छोटा और व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट वो सभी कवर करने की कोशिश करूँ। जी। तो छोटे से छोटे में शुरुआत में मैं ये कहना चाहूंगा कि कॉन्फ्रेंस जनरली हम लोग कंसिडर करते हैं इट इज ए सॉर्ट ऑफ ए फोर्थ टेक्निक। यहाँ पर ये आईओजीटीओ साइकोलॉजी जितनी पूरी नहीं है, लेकिन ये फोर्थ टेक्निक है जहाँ पे कैंडिडेट का सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बेसिकली उस कैंडिडेट का जो जनरली बॉर्डर लाइन पे होता है। तो अगर उसको फोर्थ टेक्निक मान के चलें, या हम मिनी इंटरव्यू मान के चलें, ये मिनी इंटरव्यू भी कह सकते हैं उसको, तो हमारी तैयारी जो हमने एक्चुअली इंटरव्यू के लिए करी थी, कुछ इस तरह की तैयारी यहाँ भी करनी पड़ेगी।
Yeah. इन द सेंस कि जैसे कि आप वहां पे इंटरव्यू के लिए करने गए थे तो प्रॉपरली ड्रेस थे Mhm. आपका, तो यहाँ पे भी आप प्रॉपरली अपने आप को जो ड्रेस है एक तैयार रखिए। Mhm. जो इंटरव्यू में आप कॉन्फ्रेंस में जो जाएंगे तो प्रॉपरली नीट क्लीन साफ सुथरा ड्रेस पहनिए। Mhm. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली यहाँ पे कॉन्फिडेंस बनाए रखें। पहले तो आपने आपका ड्रेस ठीक होना चाहिए। Mhm. जब एंटर करते रहते हैं तो बी अवेयर ऑफ द सराउंडिंग, कि सराउंडिंग क्या है, Mhm. अवेयरनेस होनी चाहिए। जैसे ही आपने देखा कि अंदर कॉन्फ्रेंस रूम में उससे वो बड़ा सा रूम है, Uh-huh. यू शेप टेबल लगी हुई है, 4 आईओ 4 जीटीओ 4 साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं, यूनिफॉर्म में बैठे हैं, Yes, sir. तो ऑटोमेटिकली मतलब एक डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट है जो अभी तक आपने देखा नहीं। तो बिल्कुल। यहाँ पे मतलब बिकम मोर अलर्ट, अटेंटिव, एक्टिव, Mhm. अवेयरनेस दिखाइए और गुड मॉर्निंग सबको बोलिए। Yes, sir. मतलब यहाँ पे आप इंडिविजुअली तो नहीं बोल पाएंगे कि गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, ऐसे नहीं कर सकते ना, बट बिल्कुल। गुड मॉर्निंग सर एंड मैम। अगर वहां पे कोई लेडी ऑफिसर भी बैठी है, आजकल लेडी ऑफिसर भी होती हैं, साइकोलॉजिस्ट भी होती हैं, तो उनको मिस मत करिए। Mhm. तो बी अवेयर ऑफ द रूम में कौन कौन बैठा Mhm. है, एक नजर, क्विक नजर डाल देनी चाहिए पूरे इसके अंदर में। लेडी भी हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, Okay. लाउड इनफ वॉइस, Okay. इतनी जोर से बोलिए क्योंकि ये रूम बड़ा है, Mhm. ये रूम बड़ा है, तो वहां पर मम्बल नहीं करिए और थोड़ा इतने जोर से बोलिए कि एवरीवन लिसन्स टू यू एंड प्रॉब्ली द सीनियर मोस्ट रिस्पॉन्ड टू यस गुड मॉर्निंग हाउ आर यू। Yes, sir. तो उतना जोर से बोलना और उस Mhm. कॉन्फिडेंस से, बिल्कुल। छोटी सी बात है लेकिन हाँ। एक कॉन्फिडेंस भी झलकना चाहिए आपके एक विश करने के अंदर में। जी सर। ठीक है ना, तो ये चीज आ गई। फिर वहां पर एक चेयर लगी होती है, वो यू शेप टेबल के बिल्कुल एंड पे, कोने पे, करीब 20 फीट दूर होगा, वहां पर चेयर पे आपको बैठना होता है। तो इमीडिएटली आप बैठेंगे नहीं, चेयर के Mhm. पास में जाके खड़े हो जाएंगे एंड ऑब्वियसली द प्रेसिडेंट और द इंटरव्यूइंग ऑफिसर हु हैज बीन Mhm. आस्क्ड टू एक्चुअली आस्क क्वेश्चन टू यू, ही विल से ओके सिट डाउन, Mhm. जो भी आपको बैठा दिया जाएगा। अब Mhm. जब बैठ गए हैं तो आपके चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल रखिए, Mhm. हल्की सी एक बीनी सी स्माइल रखिए एंड लुक स्ट्रेट टू ऑल। धीरे Okay. धीरे सबकी तरफ देखने की कोशिश करिए, और अभी जब क्वेश्चन करने वाला है तो प्रेसिडेंट की तरफ या जो भी इंटरव्यूइंग ऑफिसर, तो उसकी तरफ ध्यान दीजिए। जी सर। ठीक है, बट लुक कॉन्फिडेंट Mhm. एंड पॉजिटिव, Yes, sir. आपका लुक ये होना Mhm. चाहिए। एंड उसके बाद में आपको मालूम चल गया था कि आपको बुलाने के पहले 10 मिनट यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, तो दैट मीन्स यू शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि अभी मेरे को क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड आई हैव टू, ये मेक इन ब्रेक सिचुएशन है मेरी। Absolutely. अगर मैं सही अच्छी तरह से परफॉर्म कर गया तो मैं रिकमेंड हो जाऊंगा, नहीं तो नहीं। Mhm. तो ये आपको पहले से ही मालूम चल गया है, तो दैट मीन्स मेंटली बिल्कुल अलर्ट। बिल्कुल। एंड वॉट एवर क्वेश्चन इज आस्क्ड, उसको Mhm. अगर भले आपको 1 सेकंड का पॉज लेके बोलना की जरूरत पड़े तो Mhm. करिए। डोंट एक्चुअली एकदम से आंसर कर दीजिए जिसमें गलती होने की संभावना है। बिल्कुल। कई बार लोग स्पॉन्टेनियस दिखने के लिए जैसे क्वेश्चन पूछा फट से आंसर कर दिया, बट Yes. यहाँ पे थोड़ा सा आपको होशियार होना पड़ेगा। टेक 1 सेकंड मोर, थिंक एंड देन, Mhm. सो दैट योर आंसर इज करेक्ट एंड लॉजिक। Okay, sir. ठीक है ना, तो यहाँ पे बहुत वो फास्टेस्ट फिंगर वाला टेस्ट नहीं चल रहा है कि Mhm. फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट आ जाएगा, नहीं आएगा। Mhm. Yes, sir. ठीक है, यहाँ पर टेस्ट आपका दिमाग का चल रहा है, क्या सोचते हो क्या करते हो, वो सब चीजें जाननी, कुछ चीजें जो क्लियर नहीं हुई है वो जानकारी पाने की कोशिश करी जा रही है बाय वे ऑफ क्वेश्चंस। जी। तो जितना भी आपका चले, और कई बार जो ऐसे बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो उसको भी टैकल करना आपको आना चाहिए। Mhm. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि बीच में शायद आपने भी बोला था कि एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि हाउ यू परफॉर्म्ड इन ईच टेक्निक, आईओ Right. जीटीओ साइकोलॉजी, Mhm. विच टेक्निक यू परफॉर्म द बेस्ट एंड Mhm. विच टेक्निक यू परफॉर्म द लीस्ट। जी। ओके, अब Right. ये क्वेश्चन है, आपको आंसर तो करना पड़ेगा। Mhm. आपने बोला नहीं सर मैंने जीटीओ में परफॉर्म बेस्ट किया था, Mhm. मैंने आईओ में सेकंड बेस्ट किया और साइकोलॉजिकल में लीस्ट। Mhm. ऑब्वियसली अब यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा व्हाट हैपेंड इन साइकोलॉजी, Yes, sir. है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट हैपेंड इन साइकोलॉजी, Mhm. did your TAT go wrong or BAT or SRT, so Mhm. you should be ready to answer there also। Mhm. मतलब ये नहीं सिर्फ बोल देना कि सर मेरा, तो why happened and what happened psychological test, हाँ, हाँ. now again you are taken aback, मैंने तो सोचा ही नहीं था मैं क्या बोलूंगा। Yes. It ठीक है, happens. Right. it happens, so he Mhm. should be ready sir। it, since you asked to rate 1 to 3, I have rated that way, it wasn't that bad, Mhm. but probably I missed out few of WATs Mhm. and few SRTs. That's the reason I am saying my psychological test was little. जी। Otherwise, I did not perform that bad in psychological test also। जी सर। तरीके तो ये मतलब नहीं, सिंस यू आर यू रेट, इसलिए मैंने ऐसा, Mhm. कभी कभी ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं।
Okay, what do you think? How many candidates are going to be selected? Tell Exactly. me their chess number. Huh? Tell Right. me their chess. Right, sir. एंड उसने बोला सर चेस वो कुछ चेस नंबर 5 है फॉर एग्जांपल बोलेगा चेस नंबर 1 8 10 12 सर Mhm. व्हाट हैपेंड यू आर नॉट गेटिंग सेलेक्टेड Right, right, हाँ right. Yes, sir. नहीं सर आई एम आल्सो देयर Mhm. अब लेट हो गई ये बोलने Hmm. आई एम आल्सो देयर करके नहीं सर मेरा भी चांसेस है उसको बोलना चाहिए सर चेस 1 9 12 एंड आई हैव आल्सो गुड चांस तो Mhm. अपने में इतनी कॉन्फिडेंस तो रखो अपने में Mhm. इतनी बिलीव तो करो कि तुमने अच्छा किया है तुम भी सेलेक्ट हो सकते हो Mhm. तो कहीं ना कहीं आपका भी चेक हो रहा है Yes, sir. ये नहीं कि सिर्फ दूसरों का ही बताना है Mhm. आपको अपना भी बताना है Mhm. या फिर आपने बहुत खराब किया है तो बात अलग है बट लेकिन आप बहुत खराब वाले कैंडिडेट हो नहीं क्योंकि आपका डिस्कशन चल रहा है बिल्कुल. आपका डिस्कशन हुआ है आपके ऊपर में Mhm. आपका बॉर्डर लाइनर कैंडिडेट हो आप तो Mhm. मतलब बहुत खराब में नहीं हो आप Mhm. दैट Yes, मीन्स sir, यू a हैव ए chance. चांस so you should select yourself also have that Absolutely. kind of a confidence Right. है ना Right, right. ये सारे क्वेश्चन हो सकते सर हैं ऐसे क्वेश्चन में ना एक चीज मैंने नोटिस करी है समटाइम दे फोर्स यू टू आंसर सर्टेन क्वेश्चन लाइक गिव मी सम सजेशन रिगार्डिंग टू द बोर्ड एंड इफ हम्म कैंडिडेट से बिकॉज यहाँ पे कैंडिडेट सोचता है कि इट्स बेटर सेफ to be at a safer place and say no sir everything is good the stay was good the food was good but they still say no tell me something and then candidate is compelled to say something sir so why they emphasis sometime more on certain questions. देखो यहाँ पे अगेन आई विल टेल यू मैं अपना शायद इसमें पर्सनल एग्जांपल भी दे सकता हूँ हम्म. आई डोंट नो मैंने कभी शायद बताया है कि नहीं मेरे बारे में आई वाज सेलेक्टेड इन माय थर्ड अटेम्प्ट Okay. और मैं जब गया था तो हम्म. मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था मतलब मेरा कोई डिफेंस का बैकग्राउंड नहीं था हम्म. जो भी कर रहा था मैं अकेले कर रहा था और कोई कोचिंग वोचिंग होती नहीं थी उस जमाने में आई एम टॉकिंग अबाउट 1983 Okay. 83 की बात कर रहा हूँ मैं हम्म. रादर 82 में फर्स्ट गया था मैं हम्म. तो उस टाइम पे मैं अपनी तरफ से तो अच्छा किया था नहीं हुआ हम्म. बट दूसरी बार मैं तैयारी करके गया थोड़ा मेहनत करी मैंने अगेन अपने आप ही मेहनत करके गया था हम्म. और मैंने इस बार काफी अच्छा किया था और मेरा इस बार डिस्कशन भी हुआ था Okay. तो मुझे अब समझ में आता है कि हम्म. शायद ये वो वाला केस था कि मैं बॉर्डर लाइनर शायद पहुंच गया था ठीक है. एंड मेरे से काफी क्वेश्चन पूछे गए उसके बाद में एक क्वेश्चन ये पूछा गया डू यू वांट टू गिव एनी सजेशंस एंड लाइक ए स्मार्ट मैं समझता मैं अपने आप को समझ रहा था कि मैं स्मार्ट हूँ तो मैंने यस सर आई गॉट ए सजेशन मतलब व्हाट इज द सजेशन सर इन द कैंडिडेट्स मेस दे प्रोवाइड दाल जो दाल काफी पतली होती है और उसमें कंकड़ होते हैं Okay. Okay, आई sir. रिप्लाइड दिस आई Okay. थॉट कि मैंने एक बड़ी अच्छी चीज बता दी है उनको एंड बिलीव यू मी व्हेन आई केम आउट और फिर मैंने जब अपने दोस्तों से डिस्कस किया तो सबने बोला ब्लंडर यू Okay. डिड ए ब्लंडर यू डिड ए मिस्टेक हम्म. तेरा सब ठीक जा रहा था तेरे चांसेस थे शायद तेरा ये प्रॉब्लम आ जाएगा तूने ये नहीं बोलना चाहिए था फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक तुम क्या बनने आए हो यहाँ पर यू हैव कम हियर टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कंडीशन और अच्छी से अच्छी कंडीशन दोनों में बराबर रह सकता है डिफिकल्ट कंडीशन मतलब जंगल में भी रहना पड़ेगा जहाँ पे आपको खाना भी शायद प्रॉपरली नहीं मिले आपको कोई मिशन करने के लिए आपको आपका राशन खत्म हो जाए उसके पहले की मिशन कंप्लीट हो आपको खरगोश मार के भी खाना पड़ जाए सांप मार के भी खाना पड़ जाए पत्तियां भी खानी पड़ जाए जंगल के अंदर में तो भी आप जिंदा रहेंगे और मिशन को पूरा करना करेंगे अचीव करेंगे और तुम बोलते हो तुम्हें दाल में कंकड़ आ गया है. आई रियलाइज इट वाज अ मिस्टेक हम्म. तो और ऑब्वियसली फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ उस टाइम पे भी अब वो वही रीजन था या और भी कुछ था मैं कह नहीं सकता बट यस दिस वाज आई थिंक ये मिस्टेक थी मेरी जो मुझे नहीं करनी चाहिए तो इस तरह की मिस्टेक आप अवॉइड करिए जो बिल्कुल भी सर. कैंडिडेट जा रहा है ऐसे ना करिए बहुत ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है अब जैसे आप बोल रहे कि फोर्स कर रहे हैं नहीं यू हैव टू गिव मी एन रिप्लाई राइट. तो आप फिर भी बोलिए कि सर as far as I have seen, all the facilities are pretty good here, sir, and nothing is coming to my mind to improve the facilities over here. It has been pretty good, sir. I राइट. don't have anything. फिर बोले again repeat यही करो सर नहीं सर it is pretty good nothing coming to my mind sir ओके. I cannot give anything तो आप अपने पे अड़े रहो कि नहीं सर मैं आपके दिमाग में नहीं आ रहा और फैसिलिटीज काफी अच्छी हैं and they are okay nothing coming to my mind I cannot give any suggestions तो आप अपने उस पे एक दो बार बोलोगे तो उसके बाद छोड़ देंगे राइट. आपके पीछे नहीं पड़ेंगे ओके सर. सर ये तो हमने डूज की बात करी है व्हाट आर द डोंट्स अबाउट द कॉन्फ्रेंस इज देयर एनीथिंग वी शुड अवॉइड
particularly maybe in terms of, जैसे सर आपने कुछ टाइम पहले एक एग्जांपल दिया था, sometimes candidates are in so much stress that they even forget that it's good morning or good afternoon. So हाँ। are there any of it like जिसकी वजह से कॉन्फ्रेंस पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं जाए? अब जैसे कि ये छोटी सी बात मैंने जो कही थी, आपका डिस्कशन पहले चला, आप बाहर बैठे थे, आपको लगा कि मेरा मतलब डिस्कशन चल रहा है, मतलब मैं बॉर्डर लाइन पे आ गया हूँ, तो कहीं ना कहीं आप में टेंशन डेवलप हो जाता है या बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। आप बाहर बैठे हो, टेंशन डेवलप हो रहा है, उस टेंशन के अंदर में आप बेसिक्स भूल जाते हैं। तो जो मैंने एग्जांपल दिया था वो बेसिक वाला ही था। वो आगे की तो सोचने लग गया कि मैं क्या आंसर करूंगा, मेरे से क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो उतना तो सोच लिया, लेकिन उसको अंदर जाना है, गुड मॉर्निंग करना है, गुड मॉर्निंग नहीं कई बार भूल जाता है, और कभी करता भी है तो गुड मॉर्निंग की जगह गुड आफ्टरनून कर देता है, या गुड आफ्टरनून की जगह गुड मॉर्निंग कर देता है। इस तरह की चीजें करता है। और कभी कभी वो प्रॉपरली देखता नहीं, तो उसके अंदर में लेडी है तो उसको मिस कर जाता है। कोई लेडी ऑफिसर भी बैठी हुई है तो उसको भी इंक्लूड करना चाहिए। तो एक तो ये चीजें हो गई कि मतलब अपने आप को थोड़ा सा कूल काम कंपोज रखो, दिमाग को अपना ठंडा रखो, एंड रिमेन अवेयर सिचुएशन क्या है, सिचुएशन को भापो और उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करने की कोशिश करो। पहले से सारा चीज प्री प्लान करके मत जाओ, कुछ चीजें आपको स्पॉन्टेनियस भी करनी पड़ती हैं इमीडिएटली, और वो स्पॉन्टेनियस करने के लिए प्रिपरेशन दिमाग में पहले से आप करके जाओगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, और वहां पे बस आपको एग्जीक्यूट करना होता है। और जैसे पहले मैंने कहा था कि कई लोग एक ही अपना एक ड्रेस लेके जाते हैं जो इंटरव्यू के अंदर उन्होंने पहन लिया, हो सकता है कि वो ठीक नहीं है, तो यहाँ पे एक ड्रेस और ले जाइए जो कॉन्फ्रेंस में भी आपको एक अच्छा इंप्रेशन दे। व्हेन यू गो इनसाइड तो यू लुक एक्चुअली स्मार्ट, एज दे से कि आपका इंप्रेशन अगर अच्छा बनता है तो ऑब्वियसली फिर वो आपकी कॉन्फ्रेंस भी अच्छी जाएगी, तो कहीं ना कहीं फर्क होता है। तो प्रेजेंट योरसेल्फ इन ए पॉजिटिव मैनर, डोंट गो विद डर्टी ड्रेस या पुरानी ड्रेस या समझता क्या क्या। Yes, sir. तो इस So तरह की I'm चीजें just हैं। wondering that candidates, जो FD के अंदर जाके आपसे assessment लेते हैं, they are the lucky one because I just feel they are blessed. Right guidance is very important because it costs a chance, sir. Joining फिर जैसे जैसे अटेम्प्ट बढ़ते हैं सर, वो कहीं ना कहीं कैंडिडेट ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है कि अटेम्प्ट्स बढ़ रहे हैं, हो नहीं रहा है. So definitely, sir, I will highly recommend people to come up to you regarding certain things or regarding मैं एक चीज assessment. और इंक्लूड करूंगा इसके अंदर में, जो डोन्स के अंदर में आ जाती है, कि कुछ कैंडिडेट जो होते हैं जो रिपीटर्स की कैटेगरी में ले लीजिए या रिपीटर्स ना भी हों, बट जनरली रिपीटर्स के साथ नहीं ज्यादा होता है कि वो एक तरीके से कि यार मेरा ये फिफ्थ अटेम्प्ट है, सिक्स्थ अटेम्प्ट है, सेवंथ अटेम्प्ट है, यार मुझे इस बार तो होना ही है, आई हैव टू गेट सेलेक्टेड। तो एक वो डिस्पेयर मोड आ जाता है, डिस्पेयर, दे बिकम डेस्परेट, और उनके चेहरे पे डिस्पेयर दिखता है, डेस्परेशन दिखता है। माई एडवाइस टू सच कैंडिडेट कि यहाँ पे आपको डेस्परेट नहीं होना है और डेस्परेट नहीं दिखना है, ट्राई टू एंजॉय द प्रोसेस। आप ऑलरेडी 4-5 बार जा चुके हो, आपको सब मालूम है क्या होता है क्या नहीं होता। अभी आप प्रोसेस को जाइए, जो हो रहा है उसमें अपना बेस्ट दीजिए और एंजॉय करिए, डेस्परेशन अपने चेहरे पे मत लेके आइए। जहां भी आप डिस्पेयर होकर काम करेंगे, देयर आर चांसेस कि आपसे गलती होगी और फिर रिस्क हो जाएगा। तो डेस्परेशन इज अ वर्ड जो आप उसको निकालना है, आपके चेहरे से नहीं दिखना चाहिए। तो अपने आप को हमेशा, इसलिए मैं कहता हूँ ना, कूल काम एंड कंपोज्ड, अपने आप को थोड़ा सा कूल रखिए, काम रखिए, एंड अवॉइड डेस्परेशन, एंजॉय द प्रोसेस, डू वेल, गिव योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये एक भी इंक्लूड करेंगे जो बेसिकली रिपीटर्स हैं, तो उनके लिए फायदा। जी सर। सर, जो अगला क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ सर, दैट इज एसोसिएट अबाउट कॉन्फ्रेंस इन अ वेरी डिफरेंट वे, बिकॉज कहीं ना कहीं जब असेसमेंट होता है, पहले जितनी भी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं वहाँ पे एक असेसर होता है, या सर देयर आर टू असेसर एट मैक्स, बट व्हेन यू एंटर द कॉन्फ्रेंस, the the room which is full of officers, this all start staring you, observing your personality. So sir, somewhere the other, what you're speaking is important, but along with it, your gestures, your body language, and the dressing is very important, sir. How This that is also very important. जो मैंने एक ही वर्ड के अंदर में मैंने सब इंक्लूड कर लिया था, वो कॉन्फिडेंस एक्चुअली। तो व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट, आपके जेस्चर्स और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज, जो आपकी बोलचाल है, वो एक कॉन्फिडेंट नजर आएगी, तो फिर आपका बॉडी लैंग्वेज भी पॉजिटिव सिग्नल्स देगा। तो बॉडी लैंग्वेज उसी का हिस्सा हो जाता है, कॉन्फिडेंस के अंदर में भी कह सकते हो, बट अगर सेपरेटली कहना है तो बॉडी लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप मतलब बहुत रोबोट की तरह ना बैठिए, ये एक पॉइंट आ जाता है। मैंने कई कैंडिडेट देखे हैं, व्हेन दे सिट ऑन द चेयर, दे सिट सो मतलब रिजिडली कि वो रोबोट लगते हैं। तो वो एक रोबोट नहीं लगना चाहिए उनको, दे शुड बी
मतलब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एंड उनके भी जेस्चर्स होने चाहिए, उनके भी इमोशंस आने चाहिए, चेहरे पे थोड़े जो उतार चढ़ाव आते हैं, भाव आते हैं, वो सब दिखने चाहिए. ट्राई टू बी ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, नॉट ए रोबोट. रोबोट होते हैं. एब्सोल्युटली सर, जैसे सर्विस कैंडिडेट्स भी आते हैं जो उनको अलग तरह के डाउट्स होते हैं कि यूनिफॉर्म डाल के जाना चाहिए या कैसे कैसे जाना चाहिए सर, तो सर्विस कैंडिडेट के एसोसिएट में कुछ अगर हम डिस्कस कर सकते मैंने दोनों तरह के देखे हैं. हैं. काफी पहले मैंने जब वो मैं करता था तो कई बार उस टाइम पे सर्विस कैंडिडेट वर आस्क्ड टू कम इन यूनिफॉर्म ओनली फॉर द इंटरव्यू ओके. एंड फॉर द कॉन्फ्रेंस ऑल्सो. तो और फिर मैंने ऐसे भी देखा है कि कई बार सर्विस कैंडिडेट यूनिफॉर्म में नहीं भी आए हैं. ओके. तो इट डिपेंड्स अपॉन द इंस्ट्रक्शन. आई वुड टेक बोथ, कि आप इंस्ट्रक्शन जो दिए गए हैं फॉलो करिए. अगर आपको इंस्ट्रक्शन में दिया गया है कि आप यूनिफॉर्म में आके आपको इंटरव्यू देना है, तो आप यूनिफॉर्म में आइए, उसके लिए अच्छा यूनिफॉर्म तैयार करके आप लेके आइए साथ में. नाउ क्वेश्चन कम्स कि जब आप इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं या फिर कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहे हैं, तो आपको क्या सल्यूट करना है. एक चीज डिफेंस में कही जाती है कि अंडर द रूफ, इवन दो यू आर वेयरिंग ए यूनिफॉर्म, यू शुड नॉट बी गिविंग ए प्रॉपर सल्यूट. मतलब प्रॉपर ऐसे सल्यूट करने की आपको जरूरत नहीं होती. तो यहाँ पे एक शॉर्टकट मेथड होता है, जो आप कम टू एन अटेंशन एंड एक्चुअली रेज योर हील. थोड़ा सा अपने रेज योर हील और ऐसे कर थोड़ा सा खड़े हो जाते हैं. तो दैट इज ऑल्सो ए सॉर्ट ऑफ ए सल्यूट एक्चुअली टू द ऑफिसर्स. अगर यूनिफॉर्म में आ रहे हैं तो इस तरह की आप करिए, प्रोसेस करिए अपना. और अगर यूनिफॉर्म में आपको नहीं आने की बोला गया है, तो फिर आप जैसे सिविलियन होते हैं वैसे करिए. बट लेकिन ऑब्वियसली एक सर्विस कैंडिडेट है, तो उसका चाल चलन या मार्च पास्ट टाइप जो कह रहे हैं, जो अंदर आने का तरीका डेफिनेटली सिविलियन से डिफरेंट रहेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा कड़क तेजी से चलते हुआ आएगा. थोड़ा सा उसमें डिफरेंस तो आएगा. तो उसको लगना भी चाहिए कि यस, मैं एक सर्विस कैंडिडेट हूँ, आर्मी का हूँ या नेवी का हूँ. तो वो थोड़ा सा एक अच्छी तरह से आइए, हल्का सा मार्च करते हुए लगे, और एक सावधान पे आइए, कड़क से आपको लगे कि हाँ, जैसे क्लिक ऑफ द बूट नजर आ रहा है करके सुनाई पड़ रहा है. थोड़ा सा एक स्मार्टनेस दिखनी चाहिए. तो सर्विस वाला अगर ऐसा करता है, तो इवन इफ इज इन सिविलियन ड्रेस, ओके. And अपने आप को इस तरह से. so one last thing associated to dressing sense is tie, because interview के time पे तो sir it is being generally discussed among the candidates that you should wear a tie. But what about conference, sir? Should we use it or should we not? Conference also same thing. Conference also same thing. And I would say कि largely depends upon the weather actually. In interview और conference, अगर weather ऐसा demand करता है कि आपको कोट पहनना है, टाई पहनना है, और आप कंफर्टेबल हैं उसके अंदर में, तो जरूर पहनिए. आप स्मार्ट लगते हैं. अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं, मतलब पहली बार पहन रहे हैं, कभी पहले पहना नहीं, और टाई बांधने में शायद थोड़ी सी आगे पीछे हो जाए जल्दीबाजी में, या फिर टाई पहन के आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, बार बार अपने टाई को टच कर रहे हैं, एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो देन आई सजेस्ट यू डोंट वेयर इट. Okay. आपको कंफर्टेबल लगना है. आपका दिमाग भटकना नहीं चाहिए एक छोटी सी चीज के लिए, टाई यहाँ पे मेरे को कंफर्टेबल नहीं लग रही, मैं ठीक है कि नहीं, बीच में है कि नहीं, आपके दिमाग में ये चल रहा है. दैट मीन्स कहीं आपका दिमाग भटक रहा है. आपका दिमाग भटकेगा तो यू विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर योरसेल्फ. आंसरिंग करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी. तो यू शुड बी कंफर्टेबल वॉट एवर यू वेयर. Right. और बेसिकली जो इंटरव्यू में पहन रहे हैं वो चीज यहाँ भी पहन सकते हैं. Okay. तो टाई में नॉट. Okay, sir. So last scenario which just come to my mind regarding the difficulty level. Sir, यहाँ पे मैं दो perspective में discuss करना चाहूंगी, because there is a graduation entry and there is a 10+2 entry जहाँ पे अलग अलग NDA, TSL उस तरह के entries के candidate आते हैं. So is there any difficulty level in terms of 10+2 entry or graduation entry, या conferences on the same parameters, या उनका डिफिकल्टी लेवल या एनालिसिस लेवल उनके सेम होता है? एक और पर्सपेक्टिव पे पूछना चाहूंगी सर, देयर आर मेल कैंडिडेट्स एंड फीमेल कैंडिडेट्स, दोनों अपने अपने पर्टिकुलर एसएसबीज के लिए जाते हैं, तो वहां पे भी सर क्या कंपैरिजन होता है? तो थोड़ा सा आई वांट टू डिस्कस. हाँ, मैं इसको टच करने की कोशिश करूंगा. लेट्स टेक एन एग्जांपल. एक एनडीए, एक ग्रेजुएट. ओके. ठीक है. अब एनडीए वाला जो कैंडिडेट है, जनरली एज यू नो कि उसकी एज तो कम होती है, अपना 16.5 और 19.5 के बीच में होता है. तो वो एक कैंडिडेट जो होता है, मैं एक तरह से कहूंगा कि वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता है. ट्रांसपेरेंट इन द सेंस कि ये बहुत मतलब बहुत भोले भी होते हैं, सीधे भी होते हैं. वॉट एवर कम टू देयर माइंड इज. कई लोग बहुत तैयारी भी करके आते हैं, तो उनके भी थोड़े प्रिपेयर्ड आंसर होते हैं. उसके बावजूद भी उनकी जो पर्सनालिटी है इन कंपैरिजन टू अदर्स, थोड़ी सी इजियर और सॉफ्टर पर्सनालिटी होती है. राइट सर. तो दैट मीन्स दे आर इजी टू बी जज्ड कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं. तो उनके लिए जो क्वेश्चन हमारे को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती मोस्ट ऑफ द केसेस. और उनको नॉर्मल के उसके अंदर में ही उनके बारे में समझ में आ जाता है कि वो किस तरह की पर्सनालिटी है.
और वो चीज जो एक ग्रेजुएट एंट्री के लिए है, तो ग्रेजुएट एंट्री के अंदर में जो कैंडिडेट होते हैं वो थोड़े से मतलब दुनिया ज्यादा देखी होती है, एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज्यादा होता है, एंड दे आर मोर मेच्योर्ड, और वो कहीं ना कहीं मतलब अपने आप को क्लियरली नहीं दिखाती, इजीली नहीं दिखाती, Right. उनकी पर्सनालिटी एकदम से समझ में नहीं आएगी जब तक और प्रोबिंग नहीं करेंगे। तो Right. ऑब्वियसली उनको प्रोब करना पड़ता है, थोड़े से क्वेश्चन को लेवल की हमको डिफिकल्टी बढ़ानी पड़ती है, उनसे और क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं, तो ये डिफरेंस आ जाता है उनको जानने में और एक एनडीए वाला कैंडिडेट। जी सर। तो हमको डिफिकल्टी लेवल बढ़ानी ही पड़ती है, कई बार हम डिफिकल्ट उनको पूछते हैं, सिंथेटिक क्वेश्चन पूछते हैं उनसे, थोड़ा सा उनको फिर हम और कॉर्नर में लेके जाते हैं, जो भी आंसर देते हैं तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो डिफिकल्ट और बढ़ा देते हैं, तो वो करना पड़ता है, दैट वी आर मोस्ट ऑफ द टाइम वी डू इट। Okay, sir. So what about male and female candidates? मेल एंड फीमेल का असेसमेंट तो कर लिया है हमने, जैसे मेल या फीमेल का दोनों का सभी का एक ही बात है, कोई भी कैंडिडेट है, एंड एक चीज एक बड़ी नजर आती है जो मैंने थोड़ा बहुत महसूस किया है कि मेल और फीमेल के अंदर में फीमेल जो कैंडिडेट्स होती हैं वो इम्प्रेशन मैनेजमेंट को ज्यादा इस्तेमाल करती Okay. हैं, दे आर एक्चुअली दे नो कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है और उनकी वीकनेस क्या है, Weaknesses क्या है? तो Yes. नथिंग रॉन्ग इन इट, आई मीन आई वुड से नथिंग रॉन्ग इन इट, इट्स अ गुड थिंग कि दे नो अबाउट देमसेल्व्स, और वो जानने के बाद में उनका जो अच्छाई है ना वो उसको इम्प्रेशन भी अच्छा बनाने की कोशिश करती हैं, तो दे आर जनरली वेल ड्रेस्ड, वेल आर्टिकुलेटेड, अच्छा बोल लेती हैं, अच्छा कर लेती हैं, बट सिर्फ अच्छा बोलना और ड्रेस्ड होने से अगर हम इम्प्रेस होके उसको सेलेक्ट कर लें ऐसा भी नहीं होता, Absolutely, sir. उसके अंदर में वो होना भी चाहिए, मैटर भी होना चाहिए, तो डेफिनेटली क्वेश्चन तो जो एक मेल से पूछे जाएंगे फीमेल से भी पूछे जाएंगे उसी तरह के, बट ये डिफरेंस देखने में आया है कि वो इम्प्रेशन मैनेजमेंट का फायदा उठाने की पूरी कोशिश करती हैं, Okay. एंड इट्स नथिंग रॉन्ग आल्सो, आई वुड से कि आपकी अच्छाइयां हैं तो उसको आप दिखाएं, और जितना अच्छा दिखा सकते हैं डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन योर सिलेक्शन, बट अदरवाइज लार्जली बहुत डिफरेंस नहीं है एज पर द क्वेश्चंस आर कंसर्न, वी डू वांट टू एक्चुअली सी कि उसमें ये क्वालिटीज हैं कि नहीं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। Okay. So we have come to an end. And this has been, I think, काफी डिटेल में हमने डिस्कशन कर लिया, काफी लंबा सेशन किया है, बट आई बिलीव सर जहाँ पे कॉन्फिडेंस का डाउट आए और ये वीडियोस कोई कैंडिडेट देख ले तो मुझे लगता है कि सारे नैरेटिव पे सर हमने कंप्लीट डिस्कशन किया है, एंड आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू for the time that you have given, because ultimately sir you don't know what we have discussed, so we have just one-on-one interaction ho raha hai, it's an online platform, but a candidate who is in remote area, that person knows the importance of this discussion, and I mean sir I'm very lucky that in questions ke through humne sab cheeze cover करी. Thank you so much for joining me, sir. I really wish you have a wonderful day ahead, because you really made my day after the discussion. Thank you, Sheetal. I mean, you also prepared very well. Most of the questions you had well thought of earlier. जो सारी चीजें निकल के आई उसी के बदौलत आई हैं. Yes, So sir. I'm thankful to you also. You've done a good job. Thank you very much. Thank you so much, sir. Jai Hind, sir. Thanks for watching the video, and let me know in the comment section below if you have any doubts. Follow for more such content. Jai Hind.